محترم ناظرین السلام علیکم، روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے، اور اگر کوئی شخص روزے دار سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، 2 بار کہہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے کہ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ریاستی اسمبلی میں سالانہ بجٹ کا اعلان۔ رواں سال 2,90,396 کروڑ مالیت کے بجٹ کا اعلان۔ اسمبلی اجلاس میں ریاستی وزیر خزانہ ہریش راؤ و قانون ساز کونسل میں پرشانت ریڈی نے پیش کیا بجٹ۔ اڈانی و ان سے جڑی تمام کمپنیوں کی جانچ کی جائے۔ قانون ساز کونسل اجلاس میں متحدہ ضلع ملسی کے کویتا۔ سابقہ حکومت سے نا امید ہو چکے کسانوں کے لیے سی ایم KCR ہی ایک ہمت۔ سابقہ کی طرز پر کسانوں کے حق میں پیش کیا گیا بجٹ۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ۔ پرجاوانی میں پہلی بار ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے محصول کی درخواست گزاروں کی درخواستیں وہ انہیں جلد از جلد حل کرنے کا دیا تیقن۔ DLSA کی جانب سے ڈیفنس لیگل ایڈ کونسل دفتر کا ضلع عدالت عدلیہ میں ضلع جج سنیتا کنچالا، ضلع کلکٹر و پولیس کمشنر کے ہاتھوں افتتاح۔ عوام سے استفادے کی اپیل۔ ریاستی بجٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ماکل میں ZP چیئرمین ڈی وٹھل راؤ نے سی ایم KCR کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے ضلع امارت العدلیہ پر لیگل ایڈ ڈیفنس کونسل دفتر کا ضلع جج سنیتا کنچالا، ضلع کلکٹر و پولیس کمشنر کے ہاتھوں افتتاح۔ عوام سے استفادے کی اپیل۔ آج ریاست کے 16 مقامات پر ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے آغاز کردہ لیگل ایڈ ڈیفنس کونسل سسٹم کے دفتر کا چیف جسٹس آف تلنگانہ اجل بھویان نے حیدرآباد میں افتتاح کیا۔ اسی طرح شہر نظام آباد کی امارت العدلیہ کی تیسری منزل پر اس دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت غریب عوام کو مفت قانونی مدد فراہم کرنے کے لیے 4 وکلاء کو مقرر کیا گیا ہے۔ چیف لیگل ایڈ ڈیفنس کونسل کی حیثیت سے راج کمار صوبیدار، ڈپٹی لیگل ایڈ کی طور پر جی ادے کرشنا اور اسسٹنٹ لیگل ایڈ کونسل کی حیثیت سے جی شبھم اور ان پرمود کو منتخب کیا گیا ہے۔ اور آج اس دفتر کا ضلع جج سنیتا کنچالا، پولیس کمشنر کے ناگراجو، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے شرکت کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس سہولت سے استفادہ حاصل کریں۔ Now I request Honorable Sri Justice Ujjal Bhuyan Garu, Chief Justice, High Court for the State of Telangana and Patron-in-Chief, Telangana State Legal Service Authority to virtually inaugurate the offices of Legal Aid Defense Council system in 16 identified districts of Telangana. مدرسہ معاذ بن جبل میں آج مسجد کا سلاب ہے۔ مسجد کی تعمیر میں 100 روپے کے ذریعے بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ مدرسے کے ذمہ داران کی اپیل۔
مولانا محمد عبدل حمیدل سائی قاسمی بانی و ناظم مدرسے کے مطابق مدرسہ معاذ بن جبل بودن ضلع نظام آباد میں آج بروز منگل بتاریخ 7 فروری کو مسجد کا سلاب ڈالا جائے جو 4000 اسکوائر فٹ بڑا سلاب ہے. 15 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے جس میں سے تقریباً رقم آپ کے تعاون سے ادا کر دی گئی ہے. اب سے سیلاب کے لیے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے کے خواہش مند حضرات متوجہ ہو. اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا مال قبول ہو گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. ایک تھیلا سیمنٹ کے لیے 400، 1 فٹ تعمیر کے لیے 500، آدھے فٹ تعمیر کے لیے 250، ایک مسلح کی تعمیر کے لیے 5000 یا کم از کم صاحب خیر حضرات 100 کی امداد اپنے ذخیرہ آخرت کے لیے یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جمع کر کے تعمیر مسجد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اپنے دوست احباب کو یہ اپیل بھیجے اگر کوئی تعاون کرے تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی مسجد کی تعمیر کا ثواب لکھا جائے گا. آج سلاب کے دن دوپہر میں حاضرین کے لیے 2 بجے تام کی دعوت. گوگل پے نمبر 7013392264 واٹس ایپ پر رسید بھیج دی جائے گی. ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سنیواس ریڈی کی والدین کے نام پر منعقدہ کبڈی ٹورنامنٹ کے اختتامی تقریب میں کاماریڈی کلکٹر DSP و دیگر نے کی شرکت و کھلاڑیوں کی ہمت افزائی. ضلع کاماریڈی بانسواڑہ کے جے شنکر منی اسٹیڈیم میں 3 دنوں سے کھیلے جا رہے پرو میموریل کبڈی ٹورنامنٹ اختتام کو پہنچا جو اسپیکر پوچورام سنیواس ریڈی کی والدین پاپما راج ریڈی کے نام تھا. فائنل میں فتح حاصل کرنے والے ٹیموں کو اسپیکر کے ہاتھوں نقد انعامات اور ٹرافیوں سے نوازا گیا. کبڈی ٹورنامنٹ کو پوچورام شمبھو ریڈی نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا. اس موقع پر ضلع کلکٹر کاماریڈی جتیشوری پاٹل، ضلع SP سنیواس ریڈی، DCCB چیئرمین بھاسکر ریڈی، بانسواڑہ DSP جگن ناتھ ریڈی، BRS پارٹی قائدین موجود تھے. ٹورنامنٹ کے اختتام پر جے شنکر منی اسٹیڈیم مینیجر نریش نے تمام کھلاڑیوں شائقین کا اظہار تشکر నిర్వహించడంలో చంద్రరెడ్డికి సహకరించినటువంటి స్థానిక నాయకులందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. నరేష్ గారు ఈ క్రీడా ఈ ప్రాంగణానికి ఇన్ఛార్జ్. ఇక్కడ ఓపెన్ జిమ్మే కాకుండా ఆ ఓపెన్ జిమ్ కూడా తెప్పించామంటే దాని ప్రోత్సాహం నరేష్ గారికి. అంటే కబడ్డీ అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్, అంత జోష్, ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నటువంటి పోటీ ఆట అంటే క్రీడ అంటే కబడ్డీ. అయినప్పటికీ గెలిచినా ఓడినా ఈ క్రీడా స్ఫూర్తి ఉండాలి. దీంట్లో ఓడినామని బాధపడకూడదు, గెలిచినామని సంతోషపడకూడదు. ఓడినా గెలిచిన వారు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి. ఆ జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి పాపమ్మ ఆ విధంగా వారి జ్ఞాపకార్థమని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ జరుపుకున్నాం. تلنگانہ میں مقیم عوام کی خواہش کے مطابق ریاستی وزیر ہریش راؤ قانون ساز اسمبلی میں سالانہ بجٹ پیش کرنے کا ضلع TR صدر آرمور MLA جیون ریڈی نے کیا خطاب. آرمور اپنی اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلع TR صدر جیون ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CM KCR کی دور اندیشی کی وجہ سے کسی بھی کمیونٹی کو نظر انداز کیے بغیر فنڈز کو مختص کرنے کے باعث ریاست تلنگانہ ترقی کی جانب رواں دوا ہے. تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR کی قیادت میں کئی ترقیاتی فلاحی اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روب عمل میں لاتے ہوئے اس 2023-24 مالی سال سالانہ بجٹ کے طور پر 2,90,396 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے ریاست کی مالی حالت کو مزید مستحکم بنانے کا اظہار کیا. ریاستی وزیر صحت و خزانہ ہریش راؤ نے 2023-24 مالی سال کے لیے اسمبلی بجٹ پیش کیا. ریاستی وزیر صحت و خزانہ ہریش راؤ نے 2023-24 مالی سال کے لیے اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے ریونیو اخراجات کے لیے 2,11,685 کروڑ روپے سرمایہ کاری کی لاگت پر 37.525 کروڑ روپے منظور کرتے ہوئے زراعت و آبپاشی و تعلیم و طبی شعبے کے لیے زائد فنڈ سے مختص کیے گئے. اسی طرح سے آبپاشی شعبے پر 26,885 کروڑ روپے، زراعت کے شعبے پر 26,831 کروڑ روپے، پاور سیکٹر کو 12,727 کروڑ روپے، انسانی وسائل کے محکمے کو 9.599 کروڑ روپے، محکمہ خزانے کو 49.749 کروڑ روپے، محکمہ تعلیم کے لیے 19,093 کروڑ روپے، طبی شعبے کے لیے 12,161 کروڑ روپے، آروگیہ شری اسکیم کے لیے 14,063 کروڑ روپے، روڈ اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے 2,500 کروڑ روپے، محکمہ پنچایت راج کو
426 करोड़ रुपए, IT कम्युनिकेशन महकमे के लिए 366 करोड़ रुपए, खर्च की मुआफी स्कीम के लिए 6.385 करोड़ रुपए, रैतु बंधु स्कीम के लिए 15.075 करोड़ रुपए, रैतु बीमा स्कीम 1589 करोड़ रुपए और KCR न्यूट्रिशन किट स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए, आसरा पेंशन के लिए 12,000 करोड़ रुपए, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के लिए 3,210 करोड़ रुपए, दलित बंधु के लिए 17,700 करोड़ रुपए, BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 6,229 करोड़ रुपए, अखिलती बहबूद के लिए 2,200 करोड़ रुपए, महकमे कबायली बहबूद की तरक्की के लिए 15,223 करोड़ रुपए और ऑयल पाम की काश्त के लिए 1,000 करोड़ रुपए, हरिता हरम स्कीम के लिए 1,471 करोड़ रुपए, पले प्रगति शहरी तरक्की प्रोग्राम के लिए 4,834 करोड़ रुपए और डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के लिए 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इजहार किया। సాగుకు బడ్జెట్లో రూపాయలు 1000 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. వ్యవసాయ శాఖకు బడ్జెట్లో 26,831 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడమైనది. నీటిపారుదల రంగానికి బడ్జెట్లో 26,885 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. విద్యుత్ శాఖ కోసం ఈ బడ్జెట్లో 12,727 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడమైనది. ఈ సంవత్సరం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థకు రాష్ట్ర బడ్జెట్లో 3,117 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. ఆసరా పెన్షన్ల కోసం ఈ బడ్జెట్లో 12,000 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. దళిత బంధు పథకం కోసం ఈ బడ్జెట్లో రూపాయలు 17,700 కోట్లు. ఈ బడ్జెట్లో షెడ్యూల్డ్ కులాల ప్రత్యేక ప్రగతి నిధి కింద 36,750 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. ఈ బడ్జెట్లో షెడ్యూల్ తెగల ప్రత్యేక ప్రగతి నిధి కింద 15,233 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. బీసీ సంక్షేమం కోసం ఈ వార్షిక బడ్జెట్లో 6,229 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కోసం ఈ వార్షిక బడ్జెట్లో 3,210 కోట్ల నిధులు ప్రతిపాదించడమైనది. మహిళా శిశు సంక్షేమానికి ఈ బడ్జెట్లో 2,131 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. बालकुंडा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहकिन में फराहमी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड के तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शरीक इलाज मुआवजा हासिल करने वाले मुस्तहकिन को मंजूर करदा CMRF चेकों की अवामी नुमाइंदों ने इस्तेफादा कुननगान को हवाले किया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद के चंद्रशेखर राव इक़्तिदार पर फायद होने के बाद इनकी कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाह स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत अहल मुस्तहिक़ अफराद के इलाज मुआवजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है ताकि इनके इलाज मुआवजे में आसानी हो सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल के यकसी के लिए मुख्तलिफ फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मौमरीन, बेवाओं, तनहा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि CM KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से: M विजय राव 75,000, M बालैया को 75,000, G गंगैया 55,000, D सामिया को 45,000, S रामलू को 45,000, N लक्ष्मी को 40,000, N सायना 30,000, K अम्माई 24,000, नरसैया 20,000, M विठल 18,000। इस मौके पर इस्तेफादा कुननगान की जानिब से CM KCR को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में रियाज पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों ने अवामी शिकायत को जल्द जल्द हल करने के लिए ओहदेदार पहल करें। प्रजावानी प्रोग्राम में 109 शिकायतें मौसूल। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिकायतों की समाअत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल की फौरी हल के लिए 109 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुननगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, ZP CEO गोविंद को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें
तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान के PR दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। रेंजल मंडल के साटापुर में कांग्रेस के जेर निगरानी में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के ताल्लुक से कारकुनान को शौर बेदारी अमल में लाई गई। रेंजर मंडल के साटापुर में कांग्रेस के जेर निगरानी में मुनाक़दा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के ताल्लुक से कारकुनान को शौर बेदारी अमल में लाई गई, जिसमें साटापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MP रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम कांग्रेस कारकुनान को हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए इन्हें हर एक गाँव में सुकूनत पजीर अवाम से रुजू होकर कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद रूबेअमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन के अलावा कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే మహారాష్ట్ర నాందేడ్లో సభ పెట్టిందో అక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్థానిక నాందేడ్ విలేకరులు ఒక ప్రశ్న అడిగిర్రు. బాబ్లీ విషయంలో తెలంగాణ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ముందటి నుంచి గొడవలు ఉన్నాయి, దాని విషయంలో మీరు ఏమంటారు సార్ అని అన్నప్పుడు, అరే బాబ్లీ చాలా చిన్న ప్రాజెక్టు, మీరు ఇంకా పెద్ద లెవెల్లో నీళ్ళు मायूसी और डिप्रेशन का शिकार किसानों में फिर से हिम्मत व खुद एतमादी पैदा करने में CM KCR हुकूमत कामयाब होने का रियासती वजीर हरीश राव ने किया इजहार। रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने कानून साज असम्बली में सालाना बजट पेश करते हुए कहा कि 2023-24 के लिए 2,90,396 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी अमल में लाई गई और महकमे ज़राअत के लिए 26.831 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इसमें से कर्ज मुआफी स्कीम के तहत 6,385 करोड़ रुपए, रायतु बंधु के लिए 15.075 करोड़ रुपए, रायतु बीमा के लिए 1.589 करोड़, ऑयल पाम की काश्त के लिए 1,000 करोड़ रुपए मुख्तस की गए। इसी तरह से तेलंगाना की तश्कील से पहले 10 सालों में ज़राअत व इससे मुंसलिक शोबे पर इसी वक्त की हुकूमत के जानिब से 7,994 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और रियासत की तश्कील के बाद 2023 जनवरी तक KCR की हुकूमत की जानिब से 1,91,612 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका मतलब 20% फंड से ज्यादा रकम खर्च की गई। जहाँ मुल्क की ज़राअत तरक्की की शरह 4% है, वहीं तेलंगाना में ये 7.4% होने का इजहार किया। बालकोंडा मंडल के बसापुर देहात में धान के खेतों का जायजा लेते हुए फसल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करने का मंडल ज़राई अहदेदार महिंदर रेड्डी ने किसानों से की ख्वाहिश। बालकोंडा मंडल के ज़राई अहदेदार महिंदर रेड्डी ने बसापुर देहात में धान के खेतों का मुआयना करते हुए फसल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसानों को मुनासिब इक़दामात करने की तजवीज़ देते हुए बताया कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दीगर अक़साम के कीड़ों से चावल की फसल बर्बाद होती हुई नजर आ रही है और इसी तरह से धान में जिनक की कमी देखी गई है। जिनक से निजात के लिए जिनक सल्फेट 2 ग्राम लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अगर फसल की बेहतर नशोनुमा न होने के बायस 19-19-19 को मिलाकर स्प्रे करें। इस प्रोग्राम में AEO कृष्णा वेनी, जापू भूमन्ना, गंगैया, मलेश किसानों के अलावा VRS सोराजन वो दीगर मौजूद थे। अदानी कंपनियों के खिलाफ आयद करदा इल्जामात की तहक़ीक़ात करने के लिए मुश्तरका तौर पर पार्लियामेंट्री कमेटी का क़याम अमल में लाने का मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने किया इजहार। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने रियासती कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए मुल्क में बहरान की सूरत हाल होने पर अफसोस का इजहार किया और अदानी कंपनी की शेयर की कीमतें गिरने के बावजूद भी मुल्क की मैशियत पर कोई असर न पड़ने के ताल्लुक से मरकजी वज़ीर ख़जाना की जानिब से किए गए ऐलान की सख्त मजम्मत की और इन्होंने अदानी के साथ साथ SBI व LIC जैसी कंपनियों के हिस्से की कीमतें भारी पैमाने पर गिरने की वजह से आम आदमी को ज्यादा नुकसान होने का इजहार किया। గ్రామాలలో ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టాలనేటటువంటి కామన్ మినిమం ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్ని వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం పాటించడం జరిగింది. కానీ NREGS బడ్జెట్ని 2,50,000 కోట్లు ఉంటే 60,000కు తగ్గించి ఆ యొక్క సూత్రాన్ని పాటించకుండా గ్రామాలలో మరి డబ్బులు పంచకుండా రేపు భారతదేశాన్ని ఎట్లా ఆగం చేస్తారో మోడీ గారు అనేటటువంటి భయం ఇవాళ భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలకు ఉన్నదనేటటువంటి విషయాన్ని మనం కూడా గమనించుకోవాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పథకాన్ని
ప్రజలు ఆశీర్వదించి ప్రభుత్వంలో పెట్టినందుకు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీని కూడా నెరవేరుస్తున్నందుకు ఈ అద్భుతమైనటువంటి బడ్జెట్ ఇచ్చినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ आर्मर रेवेन्यू सर्वे शिकारी राजू टीएनजीओ सदर मुंतखब होने पर तहसीलदार दफ्तर पर पेश की गई तहनीत। आर्मर रेवेन्यू सर्वे शिकारी राजू टीएनजीओ तंजीम के सदर मुंतखब तेलंगाना एनजीओ सदर आर्मर मुंतखब होने पर आर्मर रेवेन्यू सर्वे शिकारी राजू और रेवेन्यू इंस्पेक्टर अशोक को तहसीलदार आर्मर वेणुगोपाल की निगरानी में तहसीलदार दफ्तर के मुलाजमिन की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर तहसीलदार वेणुगोपाल गौड़ ने मुखातिब करते हुए बताया कि राजू को सदर के ओहदे पर फायज होना हमारे लिए बाइज़ फख्र है। टीएनजीओ सदर का ओहदा एक जिम्मेदारी का ओहदा है। इसके जरिए मुलाजमिन के मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी और दीगर कई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। इसी तरह इन्होंने नौ मुंतखबा जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की। बातज़ार टीएनजीओ नौ मुंतखबा सदर राजू ने इन्हें सदर के ओहदे पर फायज करने पर इजहार तशक्कुर किया और अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ करने का इरादा जाहिर किया। इस मौके पर नायब तहसीलदार बी विजयकांत, सुरेश, अरुणा मैडम, महमूद व दीगर स्टाफ मौजूद थे। తాలూకాకు సంబంధించి తెలంగాణ ఎన్జిఓస్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక కాబడిన శ్రీ షికారి రాజు గారు, సర్వేయర్ గారు ఆర్మూర్, మరియు అలాగే శ్రీ అశోక్ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్మూర్ గారు ఇద్దరిని కూడా ఈరోజు కార్యాలయం సిబ్బంది అందరి సమక్షంలో అభినందించడం జరిగింది. అలాగే నేను కూడా ఒక యూనియన్ రిప్రజెంటేటివ్ని, అలాగే మా డీటీ గారు కూడా ఒక యూనియన్ రిప్రజెంటేటివ్గానే ఉంటారు. మాకు ఈ యూనియన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉండడం అనేది ఎంత కష్టం అనేది తెలుసు. అందరి సమస్యలను వినాలి, అందరి సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే మన లెవెల్లో పరిష్కారం కాని సమస్యలు ఉంటే జిల్లా తాలూకా యూనిట్ అధ్యక్షునిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడానికి సహకరించిన నా తహసీల్ ఆఫీస్ సిబ్బందికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. ఈ పోస్ట్ నాకు వచ్చినట్టే కాదు, మన తహసీల్ ఆఫీస్కి వచ్చిందంటే ఇంకా చాలా గర్వకారంగా ఉంది. रियासती कानून साज कौंसिल बजट पेश करने वाले रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी को कौंसिल चेयरमैन व दीगर एमएलसीज ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। रियासती कानून साज कौंसिल में बजट पेश करने वाले रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी को कौंसिल के चेयरमैन व एमएलसीज ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में एमएलसीज वीजी गौड़, राजेश्वर राव मौजूद थे। तलबा मनसूबाबंदी के तहत मुसाबिकती इम्तहानात की तैयारी करते हुए गवर्नमेंट मुलाजिमत हासिल करने का जिले कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। कामारेड्डी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट के ज़ेर निगरानी में ग्रुप 2, 3, 4 खुसूसी फाउंडेशन कोर्स की तरबियत पर मबनी प्रोग्राम का जिले कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मनसूबाबंदी के तहत तलबा मुसाबिकती इम्तहानात की तैयारी करते हुए गवर्नमेंट मुलाजमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर किश्तैया, जिले इंचार्ज शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट अहदेदार वेंकटेश्वर्లు व दीगर मौजूद। ఏ ఎగ్జామ్ కైనా తక్కువ అంచనా వేయొద్దు, ఎందుకంటే అదే కావాలి నాకు, ఇది ఏంటి నేను చెయ్యను, దీంతో లాభం ఏంటి అట్లా ఆలోచిస్తారు. కానీ మనమందరూ గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి ఎందుకు ట్రై చేస్తున్నాము, ఆ బేసిక్ క్వశ్చన్కి మనం గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. సో ప్రైవేట్ జాబ్లో ఎంతో మనం సంపాదించవచ్చు, చాలా మంచి ఏదైనా మీన్స్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. కానీ గవర్నమెంట్కి మనం ఎందుకు వస్తున్నామంటే దీంట్లో మనకి ప్రజలకి సేవ చేసే ఒక అవకాశం ఉంది. ఇది గొప్పగా చెప్పేది విషయం కాదు. సో మనం అందరం ఎప్పుడైనా హిస్టరీ చదువుతాము, మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి చదువుతాము. माकलूर मंडल के धर्मोराद देहात में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम का जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने माकलूर मंडल के धर्मोराद देहात में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की दूरअंदेशी की वजह से किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए पेश किए गए बजट में किसी भी कम्युनिटी को नजरअंदाज किए बगैर सबका ख्याल रखने पर इजहार तशक्कुर पेश किया। जिले निजामाबाद कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले राजीव गांधी हनुमंतु से निजामाबाद प्रेस क्लब कमेटी के मेंबरान ने मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिका मसाइल को हल करने के लिए की ख्वाहिश। जिले निजामाबाद कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले राजीव गांधी हनुमंतु से निजामाबाद प्रेस क्लब कमेटी के मेंबरान ने मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिका वेलनेस सेंटर व एक्रेडिएशन कोड से मुंसलिक मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में प्रेस क्लब सदर व जनरल सेक्रेटरी बी शेखर, राजलिंगम, खजांची संदीप, नायब सदर अंजी, सीनियर जर्नलिस्ट गोविंद राजू व दीगर ने शिरकत की। प्रजावानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत।
जिले कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिका दरख्वास्तों को कलेक्टर के अलावा दीगर जिम्मेदार अहदेदारान को हवाले किया। ताहम जिले कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्तों को जेर इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फक्तन जाँच करके मसाइल को हल करने के अहदेदारान को हिदायत जारी की। सीएम केसीआर की जानिब से मुसलसल 4थी मरतबा कानून साज कौंसिल में बजट पेश करने का मौका फराहम करने पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सीएम केसीआर को किया इजहार तशक्कुर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुसलसल 4थी मरतबा कानून साज कौंसिल में बजट पेश करने का मौका फराहम करने वाले सीएम केसीआर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया और कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के मकसद के तहत ही बजट को पेश करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली में सालाना बजट का ऐलान। रवा साल 2,90,396 करोड़ मालियत के बजट का ऐलान। असम्बली इजलास में रियासती वजीर खजाना हरीश राव व कानून साज कौंसिल में प्रशांत रेड्डी ने पेश किया बजट। अडानी व इनसे जुड़ी तमाम कंपनियों की जांच की जाए। कानून साज कौंसिल इजलास में मुत्तहदा जिले मिर्सी के कविता। साबिका हुकूमत से नाउम्मीद हो चुके किसानों के लिए सीएम केसीआर ही एक हिम्मत। साबिका की तर्ज पर किसानों के हक में पेश किया गया बजट। रियासती वजीर हरीश राव। प्रजावानी में पहली बार जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने महसूल की दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें वो इन्हें जल्द जल्द हल करने का दिया तयख्खुद। डीएलएसए की जानिब से डिफेंस लीगल एड काउंसिल दफ्तर का जिले अदालत अदलिया में जिले जज सुनीता कुंचाला, जिले कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर के हाथों इफ्तिताह। अवाम से इस्तीफादे की अपील। रियासती बजट का खैर मकदम करते हुए माकूल में जेडपी चेयरमैन डेविड कलराव ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।